Welcome to this channel. In this video, we'll try and understand the botulism disease, which is a very fatal disease and rare as well. This word has been derived from the Latin word, which means the sausage, right? It is also sometimes known as the limberneck and the lion's disease. It is a non-contagious, which means it cannot spread from one animal to the animal in the herd, and it is an acute disease. So, further about this, we are going to dive into deep. So, let's begin this. The agent of this disease, botulism, is the Clostridium botulinum, and which is the gram-positive bacteria. Sometimes it is found in the soil and in the atmosphere in the decomposed plants, and this is a gram positive spore forming bacteria, which means that the Clostridium botulism um, spores are present in the environment. Even in the harsh and fluctuating situation, they can survive. They make the seven toxins, toxin from A to G, and these toxins are species specific, right? For example, uh, the toxin A cannot cause the disease to the horses, but it can cause the disease to the humans, right? So the Clostridium botulism is entirely dependent upon the toxins released by this bacteria, right? So here is the short table in which you can see that which type of the toxin affect the which species these toxins affect. So you can study from here. A and B and C and F are present in the humans. B and C can cause disease in the horses. B, C, D can cause in the cattle, in the sheep, only C in the dogs, C and D in the avian, C and E. It is said that the cat is the animal where this botulism has not been reported still. Right, you can see over here the Clostridium botulism microbial structure. They are very small, rod shaped, right? And over here, the most important thing to understand is that they affect the neuromuscular junctions, right? So neuro means neuron, right? And muscular means it is related to the muscle. Something junction is the combination of something, the part of something, right? Junction by mean that we mean that. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बोन है, इसके साथ मसल्स अटैच हैं, इसमें से एक पार्ट हमने लिया है, उस पार्ट को हमने जूम आउट करके देखा है कि यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स मौजूद है। तो हर छोटे बड़े जो मसल हैं, मसल फाइबर्स के साथ, मसल सेल्स के साथ ये मोटर न्यूरॉन्स साथ में जुड़े होते हैं। उसकी वजह से ही वो रिलैक्स और वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाती हैं। हमारे मसल्स रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, किसकी वजह से? न्यूरॉन्स की वजह से। और वो न्यूरॉन किसकी वजह से होते हैं उसके बारे में भी पढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये है न्यूरॉन, ठीक है, और ये है पोस्ट साइनाप्टिक पार्ट है न्यूरॉन का, पोस्ट साइनाप्टिक पार्ट, ठीक है। उसमें से हम देखते हैं कि नर्व एक्शन पोटेंशियल आता है, और यहाँ पर जो नॉर्मली प्रेजेंट एसिटाइल कोलिन होता है, एसिटाइल एसिटाइल कोलिन, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं इसको, ये मौजूद होता है नॉर्मली यहाँ पर, और ये जब एक्शन पोटेंशियल नर्व से आता है तो ये रिलीज होते हैं, ठीक है। जब ये रिलीज होते हैं तो मसल्स, ये जो सेल्स हैं उस पर निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, और उन निकोटिनिक रिसेप्टर्स पर आयन गेटेड चैनल्स मौजूद होते हैं। तो जब एसिटाइलकोलिन उन पर बाइंड होता है तो वो रिसेप्टर्स ओपन हो जाते हैं। ओपन होते हैं तो जो इन्वायरमेंट में बीच में जो स्पेस होती है न्यूरॉन और मसल सेल के बीच में या मसल के बीच में, उसमें सोडियम कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है।
तो वो क्या करते हैं, सोडियम इंटर होता है। जब वो इंटर होता है सोडियम सेल के अंदर, तो वहां पर वो एक्शन पोटेंशियल कॉज करता है। जब एक्शन पोटेंशियल कॉज होता है तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब रिलैक्स होता है तो फिर वो सोडियम आउट हो जाता है सेल से। ठीक है, और वो जब आउट होता है उसके बाद जो है वो फिर यहाँ पर एक अनदर एंजाइम होता है, कोलिनेजरेस का एंजाइम है एक, उसका नाम ये होता है कोलिनर्जिक एंजाइम है, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस। ठीक है, ये एंजाइम क्या करता है कि ये एसिटाइल को दो पार्ट्स में ब्रेक करता है, एक कोलिन में और एक एसिटिक एसिड में। ठीक है, फिर कोलिन यहाँ पे जाकर यहाँ पे इंटर होकर यहाँ पे फिर कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन होता है, फिर जो है ये साइकिल चलती रहती है। तो ये एक साइकिल है जिसमें यहाँ पर जो है एसिटाइकोलिन की रिलीज नहीं होती, फिर ये अल्टीमेटली क्या कॉज करता है, फ्लैसिड पैरालिसिस कॉज करता है। इसको फर्दर डिटेल में हम पढ़ते हैं ऐसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास हमारे पास एसिटाइल कोलिन है। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर को मैंने एनटीज शो किया है, और ये कहाँ पे मौजूद होता है, ये पोस्ट साइनाप्टिक जो क्लेफ्ट है न्यूरॉन का, जो कि आखिरी पार्ट होता है। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं, वहां पे ये मौजूद होता है। ठीक है, और उसके बाद ये मैंने मसल बनाया है, यहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, आयन गेटिंग चैनल्स, यहाँ पर इन्वायरमेंट में हम सोडियम रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कॉमनली एक वेसिकल है जिसमें एसिटाइलकोलिन मौजूद है। न्यूरॉन से हमारे पास एक्शन पोटेंशियल आता है, तो ये वेसिकल्स आउट हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, यह रिलीज होते हैं यहाँ पर, जब रिलीज होते हैं तो ये रिसेप्टर्स पर जाकर लगते हैं। ठीक है, जब रिसेप्टर से कंबाइन होते हैं तो ये ओपन हो जाते हैं, सोडियम इन होता है। जब सोडियम इन होता है तो कंट्रैक्शन होती है। ठीक है, और उसके बाद ये सोडियम है वो फिर आउट भी हो जाते हैं उस चैनल से, और यहाँ पर एक अनदर एंजाइम जिसको हम कहते हैं एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस, ये एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, एसिटाइकोलिन को एसिटिक एसिड में और कोलिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये हर बार प्रेजेंट नहीं होता, इसको जो है ब्रेक डाउन भी होता है। वो एसिटाइकोलिन जो कि फ्री होता है, जो बाउंड होता है, दोनों ही टूटते हैं, और फिर ये वापस से कोलिन जो है न्यूरॉन में जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर कोएंजाइम ए के साथ मिलकर एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ फिर एसिटाइल कोलिन बनाता है, फिर ये साइकिल ऐसे चलती रहती है। तो इस डिजीज में, बोट्यूलिज्म की डिजीज में क्या होता है कि एसिटाइल कोलिन जो है, इसको ये टॉक्सिन्स जो है ना, इसको रिलीज होने से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, रिलीज होने से इसको प्रिवेंट करते हैं। जब ये रिलीज नहीं होता तो जाहिर है मसल्स की डिमांड है एसिटाइकोलिन, जब ये नहीं होंगे तो वो रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन नॉर्मल नहीं हो सकेगी, तो अल्टीमेटली जो है पैरालिसिस होता है। ठीक है, पैरालिसिस एक स्पास्टिक होता है। ठीक है, मगर ये यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे कौन सा होता है, फ्लैसिड पैरालिसिस। ठीक है, ये जो है ये बेसिकली रिलेटेड है उसके, इसमें श्रिंक हो जाता है, मसल्स जो है इसमें श्रिंक हो जाते हैं। Moving further, you can see over here the causes of this disease. There are various, but the most common are decomposed leaves, feces containing the bacteria. If animal is eating the feces of another animal which is having that bacteria, so chances are that the animal can get that disease as well. So the ingestion of toxins of the botulism, Clostridium botulism, whether is in the food, whether
from the environment, whether by any source. But if they are taking that by the mouth, that is